So we had finished the country of the blind, had we? Durgesh, I think you're the only person who can say. Durgesh? Srishti, can you hear me? Yes, sir. We had finished the country of the blind. Yes, sir. Nunez, we had finished. Yes, sir. So today we are going to do a very important lesson, and that is called India Again. Why they call it India Again? That is mainly because India Again is written by E.M. Forrester, and he has written that particular this thing. He visited India twice, actually 3 times, not just twice, but 3 times. He visited India, and in those 3 times, right, he declared that he loved India, and that is the reason why he kept coming back to India. He loved the people of India, he liked the cultures and everything. तो उन्होंने क्या किया है कि अपने पूरे जितने विजिट्स उन्होंने किए उसमें क्या फर्क नजर आया उनको, इंडिया में क्या बदलाव नजर आया, वो उन्होंने उस वर्णन किया है. He has explained in detail the change. Some of those changes were for very positive reasons, and some were the same. पुराना इंडिया जो है वैसा ही. तो इन्होंने उसका बनाया. E.M. Forrester is the name, and India Again उसका title इसलिए है क्योंकि he visited India on 3 occasions, और हर में क्या फर्क नजर आया उनको, उसको उन्होंने ये किया. So let me begin screen sharing shortly. And who will take the responsibility for the attendance? Nobody. सर मैं अंकित को सेंड कर दूंगी, अंकित आपको सेंड कर देगा. किसको? अंकित को मैं दे दूंगी. ठीक. So I'm just accessing that particular page. Please bear with me for a few moments, after which we will go ahead and do that particular lesson. देखिए अब हम लोग में 3 essay बचे, 3 essay. First one is the one that we're going to do today. India Again. Okay. Then we will do on being a bore, यानी जो कोई बोर करता है किसी को, बहुत ज्यादा boring और ये. So on being a bore, and then we will do the last one, which is life's philosophy. The life's philosophy. ये 3 essay हैं, और मैंने आप लोग को explain किया था what is the difference between an essay and a short story. It's a postmaster mein there were characters like the postmaster himself. There was Ratan. These are the only 2 characters. Similarly, in the country of the blind, when Nunez was the main character, Medina Sarote was the second character, Yaqub was also a character. इसमें अलग अलग पात्र होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है. और जो दूसरा जो ये जो ऐसे है, ये किसी टॉपिक पे लिखा जाता है, ठीक है. इसमें कोई इंडिविजुअल्स नहीं होंगे, कैरेक्टर्स. So this is the difference. This is the main difference between
essay and a short story. No characters here. Have I shared my screen with you? No, sir. Yes, here we go. So I think you can all see my screen, right? Yes, sir. Okay. So India again by Edward Morgan Forster. Now, Edward Morgan Forster was born in 1879 and he passed away in 1970. He was the only remaining child of an architect. तो वो उनके व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में दिया। आप लोगों को पढ़ना चाहिए, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो 50 मार्क्स का काफी लंबा लिखना होता है AKU में, सॉरी PPU में, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में। सो इन दोस लिटिल इंट्रोडक्शन अगर आप लोग देंगे लेखक का तो वो बहुत बढ़िया होगा। बट he went to King George, King's College, Cambridge, and Forster came to know Indians, and he came to know and he liked Indians and the imaginative universe. So his first visit to India was mostly for pleasure, यानी घूमने घामने के लिए वो आए थे, for pleasure, like a tourist. And at that time, उस समय में India was ruled by the British, and he was a Britisher. So he had come and he had come to visit his friend Masood, whom he had met in 1910 at Cambridge. Cambridge College में वहां पे मिले थे मसूद नाम के एक व्यक्ति से, और वो इंडिया में ही रहते थे मसूद। तो वो अपने फ्रेंड मसूद से मिलने आए। He had come to meet him. So he had come to meet him. So he visited India in 1912 and again in 1921 and 22. दो बार 1912-13 में और 1921-22 में उन्होंने, और जो उनकी रचनाएं हैं जो क्रिएटिव ये हैं, अ पैसेज टू इंडिया, ठीक। फिर दूसरा जो है किताब उन्होंने लिखा था, वेयर एंजल्स फेयर टू ट्रेड, एंजल्स फियर टू ट्रेड, यानी वो जहां एंजल्स भी जाने में डरते हैं। ट्रेड मतलब चलना, ये जाना। And then the third one was A Room with a View. So these were the three prominent books that he had written. But he had also penned 6 novels. Novel bhi unhone likha, expressing his view on the experiences. So this particular is, now India again is taken from one of his broadcasts given on BBC. BBC में उन्होंने ये प्रोग्राम एक बार दिया था, एक इंटरव्यू दिया था। इंडिया उन्होंने विजिट किया और इंडिया के विजिट के बाद वो गए वापस इंग्लैंड और वहां पे BBC रेडियो पे उनका इंटरव्यू लिया। तो ये जो पैसेज है, इट इज अबाउट दैट पर्टिकुलर इंटरव्यू। उस इंटरव्यू में जो जो डिस्कशन हुआ था उसी के बारे में। BBC, and his return to India was in 1945, which was his last visit. He had come to attend the PEN conference at Jaipur. और ये पेन जो है कलम नहीं है, पेन शॉर्ट फॉर्म है। जैसे BBC किस चीज का शॉर्ट फॉर्म है, कोई बताएगा? नहीं, nobody knows this thing, the full form of BBC. शोभा कुमारी, BBC किसको कहते हैं? शोभा कुमारी से पूछ रहा हूं मैं, तो शोभा कुमारी कुछ बोल ही नहीं रही। सर नहीं पता है। नहीं पता है,
कोई बात नहीं। हाँ सर। ठीक है। बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, ये टेलीविजन पे भी आता है और रेडियो पे भी आता है और बहुत सारे भाषाओं में इसका प्रसारण होता है। तो न्यूज, करंट अफेयर्स, नए नए जो समाचार होते हैं, ज्ञान की बहुत सारी बातें वो लोग पब्लिसाइज करते हैं। ठीक है। सो दैट इज द बीबीसी। और यहाँ पे जो आप लोग पैसेज में देख रहे हो पेन, ये पेन का मतलब होता है पोएट्स एंड एसेइस्ट्स एंड नॉवेलिस्ट, यानी पोएट्स जो कविता लिखते हैं, एसेइस्ट्स यानी जो ऐसे लिखते हैं, और एन यानी नॉवेलिस्ट। तो इन लोगों के बारे में ये कॉन्फ्रेंस हुआ था, जो लेखक लोगों के बारे में। So they had all assembled in Jaipur, और उसी कॉन्फ्रेंस के लिए ये भी आए थे, E.M. Forster. He had come to attend that particular conference. So he came to attend that particular conference and he attended it in Jaipur. और इसका नाम ही था the Pen Conference. That means poets, essayists and novelists. Anyway, so this conference, Forster, he loved India. इंडिया के प्रति बहुत क्यूरियोसिटी था, जिज्ञासा था और बहुत खूबसूरत लगता था उनको ये देश। He had visited twice before, 2 बार वो पहले भी आ चुके हैं और ये उनका 1945 में, जस्ट आजादी के 2 साल पहले उनका 3rd विजिट था। So in 1912 and 1921 at the Pen Club he met Indian intellectuals, यानी बुद्धिजीवी, जो पढ़े लिखे लोग हैं, कि पेन क्लब में वही लोग, लेखक लोग ही आएंगे ना, तो वहां पे उनकी मुलाकात होती है बहुत सारे लोगों से जो इंटेलेक्चुअल्स, समाज के पढ़े लिखे लोग। एंड ही वाज सरप्राइज्ड एट देयर इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स मोर देन आर्टिस्टिक, सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। यानी सारे लोग जो हैं वहां पे दे वर डिस्कसिंग अबाउट द पॉलिटिक्स, राजनीति के बारे में सब लोग बात कर रहे हैं वहां पे। लेखक हैं तो वो लोग अर्थशास्त्र, इकोनॉमी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, या किसी और चीज के बारे में उतना टॉपिक या बात नहीं कर रहा है, बट ऑल ऑफ देम आर टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स। जैसे हमारे बिहार में होता है ना, चुनाव के समय में हर चाय की दुकान पे, हर जहां जाइए, बस, ट्रेन, सब में यही चर्चा होती है। तो यहाँ भी उनको ये देख करके बड़ा अचरज लगा कि आर्थिक समस्याएं थी भारत में उस टाइम, भारत आजाद होने वाला था या बहुत गरीब देश था, और लेकिन वो सब प्रॉब्लम्स कभी भी डिस्कस नहीं हुए। So he found them keenly discussing political issues. It was not so earlier. उनके पहले विजिट में जब आए थे वो, तो ऐसा नहीं था कि वहां पे सब लोग राजनीति के बारे में ही बात करते थे, ठीक है? It was not like that. लोग समाज के हर चीज के बारे में बात करते थे, but here he noticed that everybody was talking about politics. When he tried to speak on the agenda of the club, no one paid attention, as politics was utmost importance at that time. Utmost मतलब सबसे ज्यादा important वही था, politics. और जब वो क्लब में एजेंडा किसको कहते हैं, मतलब कोई भी मीटिंग या कुछ होता है तो उसमें सब लोग पहले से ही डिस्कशन होता है कि ये चीज पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि मीटिंग जो है वो डिरेल ना हो, वो अपनी दिशा न भटक जाए मीटिंग। तो इस तरह से वो लोग पहले से ही होता है डिस्कशन। तो दैट एजेंडा कि किस किस टॉपिक पे डिस्कशन होगा, जब वो उस टॉपिक पे बात कर रहे हैं लेकिन लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाया उनकी बातों में, ये आप लोग जो हैं सो सब उनके दिमाग पे पॉलिटिक्स ही चल रहा था कि नेहरू जी आएंगे, ब्रिटिश सरकार जाएगी तो प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, तो ये कौन बनेगा, पॉलिटिक्स से यही तात्पर्य था। So
Forrester noticed, Forster यानी जो लेखक थे, noticed that externally India was the same through the dirty windows of the train. ट्रेन के जो गंदे खिड़कियां थी, खिड़की के शीशे, उसके थ्रू उन्होंने देखा कि इंडिया वाज द सेम. इंडिया में कोई खास बदलाव नहीं हुआ था पिछले विजिट से. इट वाज एक्सटर्नली यानी बाहरी रूप से इट वाज द सेम. और उसका लैंडस्केप यानी जो बाहर की जो जमीन और ये सब जो लैंडस्केप है वो भी एक ही ऐसा था. इट वाज मोनोटोनस, एनिग्मेटिक. मोनोटोनस मतलब एक ही तरह का, पूरा खेत खलिहान उसी तरीके के. एनिग्मेटिक मतलब वो एक रहस्यमय या क्या चीज है. एनिग्मा, पता नहीं चलता था कि वो है क्या. बहुत सी चीज को वो समझ नहीं पाए. रहस्यमय भी लगा उनको इंडिया. एंड इवन सिनिस्टर एंड डिस्टर्बिंग. सिनिस्टर मतलब बहुत खराब कुछ कुछ चीज भी उन्होंने देखी गरीबी को लेकर के, जो उनको विचलित किया, डिस्टर्ब किया. बिकॉज पॉवर्टी इंडिया में बहुत हो गया था उस टाइम. सो पर उन्होंने और भी कुछ चीज. The changelessness was the real India. The second change which made him happy was the lifting of the parda system. He found that the पहले विजिट पे सब लोग पर्दा करता था, जो फीमेल या लेडीज थी. लेकिन ये उन्होंने देखा एक बदलाव दूसरे विजिट्स में. क्या बदलाव देखा भाई? कि अब पर्दा सिस्टम थोड़ा कम हो गया और इनको ये चीज बड़ा प्रभावी लगा. दिस इज अ वेरी गुड दिस थिंग. इट वाज अ साइन ऑफ फ्रीडम फॉर women. Earlier he had noticed women were hardly ever seen public places में, सार्वजनिक जगह पे शायद ही वो कभी दिखती थी. Even in the second visit he only saw some who were educated, जो पढ़ी लिखी थी उनको कुछ को दिखे उन्होंने. But he was pleasantly surprised to see them out on the streets openly. लेकिन जब अपने बाद वाले विजिट्स में उन्होंने क्या चेंज देखा कि बहुत से लोग जो हैं उसमें वो कंप्लीटली चेंज देखा उन्होंने. बहुत सी घर के बाहर भी निकल रही हैं, अपना रोजमर्रा के काम कर रही हैं. He saw that as a very positive step. So at some conferences, and on the streets openly, at some conferences they outnumbered the men. कुछ कॉन्फ्रेंस में जो वो अटेंड किए वहां पे पुरुषों से ज्यादा तो महिलाएं थी. तो ये उनको बहुत एक अच्छा और एक बहुत पॉजिटिव और सार्थक कर्म उनको ये लगा न्यूज, because it shows that the women were rising, that they were awakening to their rights. According to Forrester, until gender justice is ensured, Indian nationhood and freedom is a distant dream. अगर भारत को अच्छा करना है एक अपना, तो उसको जेंडर जस्टिस में ध्यान देना होगा. यानी बराबरी, महिलाओं को और पुरुषों को की बराबरी करनी में इक्वल मौका देना होगा सब लोग. ये उनका अपना राय था. So the third change was about the buffet system. बुफे सिस्टम के बारे में कौन बताएगा? रुचि झा. Yes, sir. What do you mean by buffet system? देखो बुफे का स्पेलिंग होता है BUFFET. यहाँ पे लिखा हुआ ना. Yes, sir. ये देखो, बताओ बुफे सिस्टम. बताती हूँ. रहने दो यार, इतना टाइम नहीं है. ठीक है, कोई और? बुफे सिस्टम होता है जब खाने पीने के लिए आपको कहीं आमंत्रित किया जाता है और टेबल पे प्लेट लगा हुआ है, आप अपना प्लेट लीजिए
जो आपको खाना है जितने वही चीज लीजिए, ठीक है, वो कहते हैं। और आप खड़े खड़े या तो खाना खाते हैं, या कई जगह टेबल कुर्सी रहती है जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके लिए, बट दैट इज व्हाट यू कॉल बुफे सिस्टम। जो हम लोग का जो ट्रेडिशनल सिस्टम था खाने पीने का, वो था कि कहीं आप जाइए, जमीन में पूरा दरी बिछा हुआ है, वहां पे बैठिए, पत्तल लगता था, और वो पुराने ढंग से जो खाना पीना शादी ब्याह में होता था, वो डिफरेंट था। तो वो बुफे सिस्टम नहीं है। बुफे सिस्टम आपको जो खाना है वही लीजिए। सो अब ये एक और चीज इन्होंने नोटिस किया कि बुफे सिस्टम जो है हर जगह प्रचलित हो गया है। यस और सर। इनको पिछली बार जब आए थे यही राइटर, तो इनको कहीं खाने पे आमंत्रित आमंत्रित किया गया, और वो वहां पहुंचे, और उनको जो ट्रेडिशनल सिस्टम है इंडिया का पत्तल वाला, वो उनको फेस करना पड़ा। सो ही हैड अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। व्हाई? बिकॉज अ ब्रिटिशर, he has to come first, remove his shoes. Then if someone is wearing a coat and a tie, British जैसे कि लोग अपना पहनते हैं, तो पालथी मार के बैठना भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमारे और आपके लिए बहुत आसान है पालथी मार के बैठना। क्रॉस, यू हैव टू सिट क्रॉस लेग्ड। पालथी को क्रॉस लेग्ड कहते हैं, बट फॉर अ ब्रिटिशर they don't sit cross legged. तो उनके लिए वो भी जिम्नास्टिक टेक्निक